सो इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ तक हुआ था? ट्रांजिस्टर अल्फा बीटा गामा का रिलेशन हो गया था ना? In transistor, we have already derived alpha, beta, and gamma and their relationship, na? थे सर। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग पॉइंट पढ़ाए, उसके बाद थर्मल थर्मल रनअवे स्टैंड। पढ़ाए थे सर। अच्छा सर। ट्रांजिस्टर लोड लाइन हो गया है। लोड लाइन आने से हो गया। तुम्हारा वहां से क्वेश्चन करवाए थे न्यूमेरिकल? यस सर। हो गया था। थोड़ा सा सिलेबस देख लीजिए। Okay, just start it. Today the H parameters. H parameters of transistor, or this is known as also hybrid parameters. That is a hybrid. H parameters or hybrid parameters. Okay. So what do you mean by hybrid? Hybrid term तुम लोग सुने हो? Hybrid सुना हो ना term hybrid parameter? Am I नहीं audible now? सर। हाँ. So what do you mean by hybrid? Hybrid क्या होता है? That is hybrid means mixed. Hybrid means mixed. सो हाइब्रिड मीन्स मिक्स्ड। अब करंट या वोल्टेज या तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में हाइब्रिड क्या होगा? ठीक है। सो दैट इज द मेन क्वेश्चन। सो व्हाट इज हाइब्रिड इन इलेक्ट्रॉनिक्स? व्हाट इज हाइब्रिड इन इलेक्ट्रॉनिक्स? First of all, my first question before going to start this, what is hybrid in electronics? So we know that the equation of voltage and current or equation of any component is the mix of that component and other components, then this is known as hybrid. ठीक है। So hybrid क्या होता है? Mixing of different components or parameters, because यहाँ पे parameter है तो parameters in equation is known as hybrid. Hybrid. Okay. So now our parameters constants are. In transistor, we know that there are mainly two basic parameters. That is the parameters whose characteristic graphs we have to plot, and that characteristic graphs totally depend on
parameters or two components. That is, one is voltage components or voltage parameters, and current component and current parameters. So now hybrid in BJT. Now we will move to the hybrid in BJT. That is, there are two parameters. Okay, so parameters are voltage and current. Now, whenever we have to use the hybrid terms in BJT, that means there are mixing of two parameters like voltage and current. Now mixing parameters of what? Mixing parameters का एक component होगा जो main output component होगा, and that output component is known as hybrid parameters, and that output component is the mixture of, or output parameter is the mixture of your voltage and current. Okay, and the two port network, because till we have already studied the BJT having only input voltage and output voltage. There are two types of voltages: input voltage, output voltage, as well as input current and output current. Now we will move to the hybrid, that means mix करते हैं, ठीक है? And in this case, two port network will be used. So for hybrid parameters, hybrid parameter in BJT, two port network concept will be implemented. And in case of two port means, what do you mean by two port? We know that the term port means terminals, and two, that is number of terminals are two. Both are in input section as well as output section. So now if we consider this is a network, okay, two port network, that means one port is assigned for current component I1, and one port is assigned for voltage component V1. That is, this is the one port, यहाँ पे input port, that is input port, and in this section output port, that is I2 and that is V2. ये output port, that is two port. That is, हम लोग ट्रांजिस्टर में अभी तक क्या पढ़ रहे थे? एक इनपुट सेक्शन है, एक आउटपुट सेक्शन है. नाउ इसको पोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे. इनपुट करंट कंपोनेंट, इनपुट वोल्टेज पैरामीटर, as well as output current component or parameters and output voltage parameter. So this is two port. One port is for two port network. Two port network. That is one port assigned for input current and voltage, and one port assigned for output current and voltage. Okay, so this is the basic concept of two port network. So two port network में क्या होगा? एक पोर्ट जो है is assigned for input current, input port, और दूसरा होगा आउटपुट पोर्ट. नाउ हाइब्रिड हम लोग किस लिए कह रहे हैं? देखो यहाँ पे इनपुट जो पोर्ट है, इन दिस पोर्ट, दिस इज द मिक्सचर ऑफ टू पैरामीटर्स, that is current and voltage, and output port also mixture of two parameters, that is current and voltage. So that's why it is known as hybrid parameter. Okay, so इसको हम क्या लिखेंगे? Since
in the both ports there are mixture of parameters, that is voltage, and current, so that network is termed as hybrid two port नेटवर्क। ओके, पहला हमको देखना पड़ेगा नेटवर्क को क्या कहते हैं, तो दैट इज नोन एज हाइब्रिड टू पोर्ट नेटवर्क। नाउ इन दिस हाइब्रिड टू पोर्ट नेटवर्क वन सेक्शन इज असाइन्ड फॉर इनपुट सेक्शन एंड अदर सेक्शन इज असाइन्ड फॉर आउटपुट सेक्शन। नाउ द इक्वेशन, अगर मेरा इक्वेशन में सिर्फ इनपुट इज ऑक्यूपाई, द इनपुट इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय इनपुट पैरामीटर्स and output will be represented only by output parameters, then hybrid concept will not be there। अगर मेरा सिर्फ इनपुट पैरामीटर में इनपुट इक्वेशन में इनपुट पैरामीटर्स रहता, आउटपुट इक्वेशन में आउटपुट पैरामीटर्स रहता, तो उसको हम हाइब्रिड नहीं कहते। सिंस हाइब्रिड मीन्स मिक्स, दैट मीन्स अलग अलग पैरामीटर्स का मिक्सिंग है। सो द इक्वेशन will consist both input parameters as well as output parameters, and the equation is divided in the component of current component and voltage component। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग ये जो पैरामीटर्स लेंगे उसको मिक्स्ड करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टू पोर्ट नेटवर्क। इस पोर्शन को अच्छे से याद रखना, ठीक है। टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर को मिक्स करेंगे, दैट इज पैरामीटर का जो इक्वेशन आएगा, फाइनल इक्वेशन आएगा, इसमें मैंडेटरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ आउटपुट इक्वेशन निकाले जिसमें आउटपुट कंपोनेंट्स रहेगा, या इनपुट इक्वेशन निकाले जिसमें इनपुट पैरामीटर्स रहेगा। इट विल बी द मिक्स्ड ऑफ इनपुट पैरामीटर्स एंड आउटपुट पैरामीटर्स, एंड द इक्वेशन will not be specified like voltage equation or current, only input voltage equation and corresponding output voltage equation I have to calculate, or only input current equation, from that I have to find out the output current parameter equation। ओके, सो ये स्पेसिफाई नहीं होगा, ठीक है, मिक्सिंग होगा। हो सकता है इनपुट करंट इक्वेशन एक में निकाले, दूसरे में आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन, या इनपुट वोल्टेज इक्वेशन निकाले, दूसरे में आउटपुट करंट इक्वेशन। दैट इज द मिक्सिंग, दैट इज द मेन motto of using the term hybrid। okay, so to elaborate the equation of H parameters, that is hybrid parameters, ठीक है, इसको हम डिफाइन करेंगे। तो पहले फिर से हम टू पोर्ट नेटवर्क का पिक्चर बना लेते हैं। टू पोर्ट नेटवर्क, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, दैट इज I1, V1, I2, V2। ओके, नाउ ये जो टू पोर्ट नेटवर्क है, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो फॉर हाइब्रिड पैरामीटर्स आई हैव टू कंसीडर that is H parameters, and H parameters will have a H constant, क्योंकि ये जो पोर्ट नेटवर्क है, ये नेटवर्क पोर्ट में ये दोनों सिग्नल जो है अंदर, ये दोनों सिग्नल जो है इस नेटवर्क के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई अ कांस्टेंट ऑफ दिस नेटवर्क विल बी कंसीडर्ड, दैट इज H parameter, it is known as H parameter। Okay, now we will see what is H।
नाउ पहले हम देखेंगे ये दोनों करंट है और दोनों वोल्टेजेस है। इसमें से क्या करेंगे हम, इसको कोई भी दो को कांस्टेंट करेंगे और कोई भी दो को वेरिएबल करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्टेप क्या है? पहला स्टेप है 4 terminals will be there, 4 terminal and 2 ports will be there। ये हाइब्रिड पैरामीटर या एच पैरामीटर का मेन क्राइटेरिया है। यहाँ पे देखो टर्मिनल 4 है, 1 2 3 4 और 2 ports है, दैट इज इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट। नाउ सेकेंड वन, out of 4 quantities, V1 I1 V2 I2, we can take any two as independent variable। independent variable, ठीक है। दैट इज इनपुट करंट, ये याद रखना, ठीक है। ये 2 पोर्ट नेटवर्क का मेन क्राइटेरिया है, इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज both are taken as independent variable। ठीक है। सो ये याद रखना, ये सेकेंड पॉइंट इज मच मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि कोई भी दो क्वांटिटीज को हम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, मतलब उसका इफेक्ट वो जो दो वेरिएबल्स है, ठीक है, I1 and V2, they will not be dependent on V1 and I2। ठीक है। सो बाकी क्या रहा, अगर I1 और V2 को हम इंडिपेंडेंट पकड़ ले तो व्हाट आर द डिपेंडेंस वेरिएबल, what are the dependent variable among these? I1 and V2 is considered as independent variable। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? V1 and I2, that is V1 input voltage and output current। So that हेलो dependent, हाँ बोलो। सर, जो अभी आप फिगर बनाए ऊपर में, हाँ, एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है? तो 2 पोर्ट देखो, 2 पोर्ट नेटवर्क क्या होता है? हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर। 2 पोर्ट नेटवर्क क्या हो रहा है, तो मैं अगर एक एग्जांपल दूंगा तो देखो तुम्हारे मोबाइल फोन में, हाँ, अभी जो चार्जर है, चार्जर पॉइंट है, ठीक है, वो चार्जर पॉइंट एक तरह से, अगर मैं एज पर एग्जांपल दूंगा उसको पकड़ लो, अगर इमेजिन करो वो एक 2 पोर्ट नेटवर्क है। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही मैं इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट दे रहा हूं थ्रू द चार्जर, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इनपुट वोल्टेज एंड करंट जो है वो पोर्ट में जा रहा है। यस और नो? यस सर। ठीक है। आउटपुट मतलब तुम्हारा जहां पे बैटरी दिखाता है, हाँ, कितना परसेंटेज चार्ज हुआ है, ठीक है, या चार्जिंग चल रहा है कि नहीं, ये कहाँ पे दिखाया जा रहा है? मेरा डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले तो अलग से देखा नहीं जाता, मोबाइल मोबाइल फोन के अलावा डिस्प्ले हम किसी कहीं और जगह पे नहीं देख पाते हैं। ठीक है। तो आउटपुट भी जो है वो थ्रू दैट 2 पोर्ट नेटवर्क के वजह से मेरा आउटपुट आ रहा है। अगर मैं चार्जर प्लग को, चार्जर पॉइंट को कनेक्ट ही ना करूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट गेट द आउटपुट। ठीक है, जस्ट बिकॉज यस ऑफ सर। दैट
टू पोर्ट चार्जिंग पॉइंट, जैसे ही मैं चार्जर को इंसर्ट कर रहा हूँ टू पोर्ट नेटवर्क में, दैट इज वो, ये टू पोर्ट नेटवर्क इज वेरी नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये एक पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट रहता है, ठीक है, हर एक के मोबाइल में या तुम्हारा लैपटॉप में जो यूएसबी पोर्ट रहता है, अगर उसको हम कंसीडर करेंगे कि एज ए टू पोर्ट नेटवर्क कंपेयर करेंगे, तो वो हो जाएगा एक पोर्ट। तो वो पोर्ट जो है वो टू पोर्ट नेटवर्क है। और टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर क्या रहता है, एक मेरा इनपुट, जैसे मेरा मोबाइल फोन में डिस्प्ले पाने के लिए मुझे ऑब्वियसली इनपुट देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल फोन में पोर्ट क्या क्या है, देखो अपना अपना मोबाइल फोन में तुम लोगों के पास पोर्ट कितना है, आई थिंक टू पोर्ट्स आर देयर, ठीक है। सो ये दो पोर्ट है, कोई भी एक पोर्ट को पकड़ लो, ठीक है। अगर मैं चार्जिंग पोर्ट को एज ए कंपेयर करूं टू पोर्ट नेटवर्क में, तो क्या होगा, ये जो है चार्जिंग पोर्ट है, लेट इट बी, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये चार्जिंग पोर्ट है, यहां से तुम क्या कर रहे हो, यूएसबी केबल कनेक्ट कर रहे हो, यहां से तुम क्या करो, यूएसबी केबल कनेक्ट कर रहे हो। तो जैसे ही यूएसबी केबल कनेक्ट करो, तुम्हारा जो डिस्प्ले है, वो डिस्प्ले किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पोर्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर तुम्हारा कहीं पे भी चार्जर पॉइंट खराब हो रहा है, तो ऑब्वियसली द डिस्प्ले विल नॉट बी शोन। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो दैट इज टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। ये जिसमें मेरा एक इनपुट रहेगा, दूसरा आउटपुट रहेगा। इनपुट के लिए मेरा करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर्स रहेगा, आउटपुट के लिए भी सेम थिंग, करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर्स रहेगा। नाउ ये टू पोर्ट नेटवर्क का भी एक क्राइटेरिया होता है कि किसी भी पोर्ट या किसी भी नेटवर्क को हम टू पोर्ट नेटवर्क नहीं कह सकते जिसका एक इनपुट पैरामीटर्स एक आउटपुट पैरामीटर्स है, और जिसका एक इनपुट पैरामीटर्स में इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट है, एज वेल एज आउटपुट पैरामीटर्स में मेरा आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट है। ऐसा किसी भी नेटवर्क को हम टू पोर्ट नेटवर्क नहीं कह सकते हैं जब तक ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होगा, ठीक है। So in case of designing two-port networks in transistor, we have to take 4 terminals that will be divided into 2 ports. Second one is, ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक, ठीक है। Second criteria is among these 4 quantities, that means यहाँ पे input current, input voltage, output current, output voltages are there. Among these 4 quantities, any two of the quantities or parameters will be taken as independent variable. That means that two parameters will not be dependent on any other parameters, ठीक है। इसका in that case the independent variable can't be expressed by equation, ठीक है। अगर सपोज तुम लोगों का जो let it be what kind of example I should give, let it be तुम लोगों का ये हो रहा है, फीस्ट हो रहा है, ठीक है। फीस्ट इज टोटली इंडिपेंडेंट, ठीक है, पर्टिकुलर डिपेंडेंट नहीं है कि पर्टिकुलर एक दिन में या एक तारीख में या एक टाइमिंग में वो फीस्ट ऑर्गेनाइज होना ही चाहिए, ऐसा होता नहीं है। सो दैट इज इंडिपेंडेंट, और इसको हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते कि साल के उस तारीख में या उस दिन में या उस टाइम में हम पिकनिक या फीस्ट रूटीन में रखेंगे, इसको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांट बी एक्सप्रेस्ड बाय एनी इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन मींस दैट इज डिपेंडेंट। अगर हम एक इक्वेशन दे दे कि सपोज यहाँ पे x और y बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, and again I am giving x equal to ta plus 5b and y equal to 2b plus 7c. So this will not be independent variable, क्योंकि x जो है that is dependent on a, t, 5 and b, y will be dependent on 2, b, 7 and c, ठीक है। So independent variable I will not be expressed by any equation, rather than I will express the equation for dependent variable. So hybrid equation है, hybrid parameters है, hybrid constant है, that is h constant,
सो नाउ मुझे इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू चूज द डिपेंडेंट पैरामीटर्स और डिपेंडेंट वेरिएबल. सो एज पर माय डिजाइन criteria, it is already mentioned that input current and output voltage will be independent variable. So obviously rest two variables, that is input voltage and output current, will be dependent variable, and I will calculate the equation for V1 and I2, or I will express the equation for H parameters. V1 and I2 equation will be developed. Okay, so dependent variable can be expressed by equation, but independent variable can't be expressed by any kind of equation. Okay, so whatever equation, that is whatever input equation or output equation I will show, that is only based on V1 and I2. That means इसका equation का एक side में V1 रहेगा और output equation का एक side में I2 रहेगा. So that's why ये अब dependent हो जाएगा. So that's why it is dependent. So dependent variable can be denoted by this: H11 I1 plus H12 V2, H21 I1 plus H22 V2. So that is the equation of hybrid parameters or two-port network, or your H parameters of equation of H parameters. Now question is that ये सर ये आया कहाँ से, ठीक है. सो ये इक्वेशन आया कहाँ से, क्वेश्चन है होगा दैट टाइप क्वेश्चन. तो देखो, इसको इक्वेशन को समझने के लिए मुझे डायग्राम को समझना पड़ेगा. टू पोर्ट नेटवर्क. सो टू पोर्ट नेटवर्क इलेक्ट्रिकल में नेटवर्क थ्योरी में है, ठीक है. अगेन ये मेरा डायग्राम है. सो यहाँ पे है I1 V1 I2 V2, ठीक है. ये डायग्राम सबको समझ में आया. ये दो इनपुट पैरामीटर्स है, दो आउटपुट पैरामीटर्स है. नाउ यहाँ पे देखो, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन सा है, दैट इज V1 इज डिपेंडेंट. डिपेंडेंट को मैं राउंड फिगर कर दे रहा हूँ, ठीक है. V1 एंड I2 डिपेंडेंट, ठीक है. और यहाँ पे मेरा H1 जो है ये इनपुट पैरामीटर्स के लिए है, H2 जो है ये आउटपुट पैरामीटर्स के लिए है, ठीक है. कांस्टेंट H पैरामीटर कांस्टेंट, दैट इज हाइब्रिड पैरामीटर. ये पोर्ट 1 2 पोर्ट 1 2, ठीक है. सो नाउ मैं डिपेंडेंट वेरिएबल को कैलकुलेट करूंगा, ठीक है. सो V1 यहाँ पे डिपेंडेंट है एंड यहाँ पे I2 डिपेंडेंट है. तो मेरा इक्वेशन आएगा यहाँ पे V1 I2 V1 I2, ये मेरा आउटपुट, ये मेरा इक्वेशन है. तो इक्वेशन विद दिस V1 and I2 is the dependent one, dependent on the independent parameters. Okay, so now V1 means, V1 का मतलब क्या है, ये now V1 can be expressed, बाकी क्या रह गया, ये I1 रह गया और V2 रह गया, क्योंकि I2 डिपेंडेंट वेरिएबल है. सो बाकी इन दोनों के इक्वेशन में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. सो देखो, मेरा V1 कौन से पोर्ट में है, इनपुट पोर्ट में है. तो H1 कौन से पोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज इन दिस पोर्ट, ठीक है. तो V1 क्या है, I1 के ऊपर डिपेंडेंट है. सॉरी, ये इसको हम राउंड फिगर नहीं करेंगे. V1 जो है दैट इज I1 एंड V2 के ऊपर डिपेंडेंट है. तो देखो,
ये I1 किसके साथ कनेक्टेड है? इनपुट पैरामीटर का एक नंबर पोर्ट, सो H1 1 इंटू I1 प्लस इधर आ रहा है, इधर आओ, अब इधर से किसके ऊपर डिपेंडेंट है? V2 के ऊपर डिपेंडेंट है, सो V2 इज द H2 एंड V1 किस पोर्ट में है? H1 पोर्ट में है, दैट इज H12 V2। I2 देखो H2 पोर्शन में है, सो H2 पहले हम लिखेंगे। I2 किसके ऊपर डिपेंडेंट है? I1 H21 दैट इज I1 प्लस और एक क्या टर्म आएगा? V2 दैट इज H2 में है एंड दिस इज 2 नंबर पोर्ट, सो 2 V2, सो दैट इज द इक्वेशन। ओके, सो ये इक्वेशन एक तरह से तुम जब तक तुम्हारा नेटवर्क थ्योरी में एंट्री नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे सिंगल पोर्ट टू पोर्ट नेटवर्क है, वो तुम्हारा खुद एक मॉड्यूल है टू पोर्ट नेटवर्क का, ठीक है। जब तक नेटवर्क थ्योरी में तुम लोग का एंट्री नहीं होता है, ये चीज तुमको याद रखना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस फिगर, ठीक है, ये चीज तुमको याद रखना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट, यहाँ पे देखो मेरा अभी तक कितना पैरामीटर्स था? V1 I1 V2 I2, ठीक है। अभी मेरा नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितना है? ये चार तो है ही, इसके साथ क्या हो गया? H11 H12 H21 H22, ये चार पैरामीटर्स ऐड हो गया। नाउ ये चार पैरामीटर्स क्या है? ठीक है, ये चार पैरामीटर्स है क्या, इसको हम पहले डिफाइन करेंगे। तो पहले आते हैं H11 पे, H11, ठीक है। तो H11 को देखो, H11 देखो, H11 क्या है? दैट इज H11 में क्या है? I1 H1, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वोल्टेज इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट मीन्स ये टोटल का जो यूनिट होगा, दैट यूनिट मस्ट बी वोल्टेज यूनिट, V1 मस्ट बी वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो ये जो टर्म है यहाँ पे I का एक टर्म है एंड H का टर्म है, सो V को अगर हम I का टर्म है यहाँ पे, ठीक है, तो V I के टर्म को अगर हम वोल्टेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे? V इक्वल टू आई आर लिखेंगे, तब ये जो I का टर्म है ये विल बी रिप्रेजेंटेड एज वोल्टेज। समझ में आया? ठीक है, सो H11, तो V इक्वल टू, वी नो दैट V इक्वल टू आई आर, और इसको हम आर आई लिखते हैं इस फॉर्मेट में। सो देखो V इक्वल टू आर आई, V इक्वल टू सम कंपोनेंट्स और सम कांस्टेंट इनटू I पैरामीटर्स, ठीक है। तो इसके साथ ये रिजेंबल्स है, सो दैट ऑल्सो H11 इज रिजेंबल्स टू R, ठीक है। सो हम लोग रेजिस्टेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि तुम्हारा ट्रांजिस्टर जो सर्किट है मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर कैपेसिटर, so that's why instead of resistance I will write the impedance, that is impedance, that is input impedance, I will write it fresh में लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर से इक्वेशन लिख रहा हूँ, V1 equal to H11 I1 plus H12 V2 and I2 equal to H21 I1 plus H22 V2। So now H11 को देखो, V equal to IR इस फॉर्मेट में है, I into some parameters, so H11 is known as input impedance, with input impedance, and it will be expressed in ohm, ठीक है।
नाउ H11 हो गया मेरा, मुझे पता चल गया ये इम्पीडेंस है। नाउ H12, H12, सो H12 क्या होगा? दैट इज H12 क्या है? इट मस्ट बी अ वोल्टेज कंपोनेंट बिकॉज V इक्वल टू V2, V1 V2, यहाँ पे भी वोल्टेज है तो ये टोटल एंटर कंपोनेंट विल बी वोल्टेज। सो H12 शुड बी, दैट इज द वोल्टेज, दैट विल बी टर्म इन वोल्टेज। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वोल्टेज है, इसको भी वोल्टेज होना चाहिए। सो ये जो होगा दैट इज voltage transfer ratio, that is voltage transfer ratio, transfer ratio, and it is unitless because यहाँ पे भी V1 वोल्टेज है, V2 वोल्टेज है, तो इसको यूनिटलेस होना चाहिए, वरना किसी वोल्टेज इंटू मल्टीप्लाई सम यूनिट आ जाएगा तो दूसरा यूनिट आ जाएगा। सो इस ये यूनिटलेस, यूनिटलेस। सो नाउ H1 इम्पीडेंस है, सो H1 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस टर्म को जीरो करेंगे और H12 निकालने के लिए इस टर्म को जीरो करेंगे। सो अगर हम V1 के इक्वेशन में लेट इट बी this portion, that is H12 V2, this portion can be taken as 0, then V1 equal to H11 I1. So I1 equal to, sorry, I have to find out the H11 value. So H11 equal to V1 by I1. Okay. सो ये जो है ट्रांसफर रेशियो है, तो इसको जीरो करना पड़ेगा तभी मेरा ये टोटल जो टर्म है जीरो आएगा। ठीक है, व्हेन V2 इक्वल टू जीरो। सो ये हो गया मेरा H11 का वैल्यू। ठीक है, H11 equal to V1 by I1, that is nothing but your resistance, and in this case we will not the term resistance because this is a mixing circuit, तो यहाँ पे कैपेसिटर हो सकता है। ठीक है, सो नाउ H12, सो H12 देखो, H12 ट्रांसफर रेशियो है, सो इसको हम जीरो करेंगे। सो वोल्टेज पहले आते हैं H11, सो वोल्टेज कब जीरो होगा? वोल्टेज कब जीरो होगा किसी भी सर्किट में? ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा वोल्टेज जीरो करने के लिए? क्राइटेरिया क्या है? सर बोलो। उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। वेरी गुड। सो दिस इज इनपुट इम्पीडेंस फॉर शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, सो H11 का फुल टर्म क्या होगा? H11 इज द इनपुट इम्पीडेंस फॉर शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट किस पोर्शन में है? V2, V2 कहां पे है? आउटपुट पोर्शन फॉर आउटपुट शॉर्ट सर्किट। तो इसको मॉडिफाई करके हम लोग लिखेंगे विथ आउटपुट शॉर्ट सर्किट। सो H11 का टोटल टर्मिनोलॉजी होगा इनपुट इंपीडेंस विथ आउटपुट शॉर्ट सर्किट। ओके, नाउ H12 में आते हैं। H12 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पैरामीटर को जीरो करना पड़ेगा। तो ये पैरामीटर का जीरो कब वैल्यू होगा? जब I1 ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन I1 योर दिस पोर्शन विल बी जीरो। ठीक है, ये पोर्शन जीरो कब होगा? I1 जब जीरो होगा। I1 कब जीरो होगा? जब इनपुट पोर्ट मेरा ओपन हो जाएगा। सो H12 will be V1 by V2 कब होगा? जब I1 will be zero। तो देखो यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो V1 इक्वल टू H12 इंटू V2, सो H12 इक्वल टू V1 by V2, दैट इज वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो। ठीक है, नाउ ट्रांसफर रेशियो मतलब क्या है? अगर हम बोलेंगे व्हाट इज द ट्रांसफर रेशियो, सो ट्रांसफर रेशियो मींस ट्रांसफर रेशियो, दैट मींस आउटपुट बाय इनपुट।
बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इनपुट बाय आउटपुट है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो, दैट इज नोन एज रिवर्स वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो, क्योंकि यहाँ पे इनपुट बाय आउटपुट हो रहा है, ठीक है। सो इसको हम कहेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस, रिवर्स वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो विथ, ये I1 को ओपन करना पड़ेगा तभी मेरा 0 आएगा, ओपन इनपुट ओपन सर्किट, ठीक है। सो ये हो गया इसका टोटल टर्मिनोलॉजी। नाउ मेरा V1 इक्वेशन का हम पूरा सब कंपोनेंट पैरामीटर्स के बारे में मुझे पता चल गया, दैट इज V1 है तुम्हारा इनपुट वोल्टेज, I1 इज द इनपुट करंट, V2 इज द आउटपुट करंट, H11 है इनपुट इंपीडेंस विद आउटपुट शॉर्ट सर्किट विल बी एक्सप्रेस्ड बाय ओम, एंड H21 है रिवर्स वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो विद इनपुट ओपन सर्किट व्हिच इज बेसिकली यूनिटलेस, ठीक है। सो ये दो पैरामीटर्स, दैट इज H12 equal to V1 by V2. That both terms should be remembered. Okay. Next आते हैं I2 के इक्वेशन पे। यहां तक सबको समझ में आया? एक बार फिर से देख लो। यहां तक सबको समझ में आया ना? हेलो, यस सर। सर हाँ बोलो। सर आप जो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करवाए हैं ना सर, वो बोला सर प्लीज समझा दीजिए ना, ये प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क इश्यू के कारण। इक्वेशन है, ठीक है। तो देखो, मेरा जो टू पोर्ट नेटवर्क है, टू पोर्ट नेटवर्क का मैं ये दो इक्वेशन समझ में आया, ये दो इक्वेशन कैसे ले रहे हैं, ये समझ में आया ना? यस सर। ठीक है। नाउ देखो, मेरा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टू पोर्ट क्राइटेरिया ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क मेरा 4 पैरामीटर्स होगा, ठीक है। तो 4 पैरामीटर्स क्या है, V1 I1 V2 I2। बट अगर हम इक्वेशन को देखेंगे तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट और 4 पैरामीटर्स मेरा ऐड हो रहा है, दैट इज H11 H12 H21 H22, ठीक है। सो नाउ वोल्टेज, पहला जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन में आऊंगा, पहला इक्वेशन को मैं पहले हाथ लगा रहा हूं, दैट इज वोल्टेज इक्वेशन, पहला जो इक्वेशन है। नाउ वोल्टेज, अगर मेरा इक्वेशन का मेरा आउटपुट वोल्टेज है तो ऑब्वियसली, अगर सपोज ये वोल्टेज का इक्वेशन है 2a प्लस 3b प्लस 7c, ठीक है। तो ये अलग 2a 3b 7c ऑल्सो विल बी वोल्टेज कॉम्पोनेंट, बिकॉज वोल्टेज के इक्वेशन में हम सिर्फ वोल्टेजेस को ही ऐड कर सकते हैं, दूसरा कोई यूनिट को ऐड नहीं कर सकते। अगर हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से स्टूडेंट को ही कैलकुलेट करेंगे, ये नहीं कि तुम्हारे कॉलेज में अगर हम बोलूंगा व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज, देन ऑब्वियसली यू विल नॉट कैलकुलेट और कंसीडर द number of students as well as number of staffs as well as number of faculties और security guards, ये सब कैलकुलेट नहीं करोगे, ओनली स्टूडेंट्स कैलकुलेट करोगे। तो ये देखो V1 जो है ये दो पैरामीटर्स का समेशन है, यहाँ पे एक पैरामीटर्स है, यहाँ पे एक पैरामीटर्स है, और ये दो पैरामीटर्स मस्ट बी वोल्टेज। नाउ अगर इसको हम देखेंगे H11 और H2 कैलकुलेट करेंगे, तो एक बार क्या करेंगे, इस पोर्शन को 0 लेंगे और दूसरा बार क्या करेंगे, इस पोर्शन को 0 लेंगे, तो कैलकुलेट H12 एंड H11। ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग दिस पोर्शन एज 0, ठीक है। तो अगर हम इसको 0 लेंगे, इसको 0 कब लेंगे, जब वोल्टेज का वैल्यू V2 का वैल्यू 0 होगा, तभी हम ले सकते हैं ना। V2 कब 0 होगा, कोई भी वोल्टेज कंपोनेंट कब 0 होता है, जब मैं उसको शॉर्ट सर्किट कर देता हूं, ठीक है। सो ये शॉर्ट सर्किट होगा तभी ये 0 होगा। नाउ अगर ये 0 हो गया तब ये इक्वेशन क्या होगा, दैट इज V1 इक्वल टू H11 I1 इक्वल टू 0, सॉरी I1 प्लस 0।
So now this V1 will be H11 I1. So now H11 is V1 by I1. So देखो V1 by I1 ये किसका इक्वेशन था? R का इक्वेशन था, R इक्वल टू V by I. ठीक है. So from this concept I can say H11 is the resistance, और यहाँ पे हम resistance यूज नहीं करेंगे because we know that हाइब्रिड सर्किट है, तो ये मैंडेटरी नहीं है सिर्फ रेजिस्टेंस ही यूज होगा. वहां पे इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, रेजिस्टर हो सकता है, मिक्सिंग ऑफ थ्री हो सकता है. अगर तीनों का मिक्सर आता है कहीं पे तो हम उसको क्या लेंगे? इम्पीडेंस इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस. सो ये हो गया H11. H1 किसके साथ एसोसिएटेड है? इनपुट पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है. यहाँ पे देखो H1 जो है इनपुट पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है, तो H11 शुड बी इनपुट इंपीडेंस विद आउटपुट शॉर्ट सर्किट. आउटपुट शॉर्ट सर्किट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मैंने V2 को 0 लिया हूं, और V2 कहाँ पे है? आउटपुट पोर्ट में है, तो आउटपुट शॉर्ट सर्किट. H11 का कॉन्सेप्ट समझ में आया? H11 का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. ओके. नाउ H12 में जा रहे हैं. H12 कहाँ पे है? इस पोर्शन में है, तो इस पोर्शन का वैल्यू निकालना है तो इसको हमको जीरो करना पड़ेगा. ये कब जीरो होगा? जब I1 जीरो होगा. I1 कब जीरो होगा? जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ओपन सर्किट में ये जीरो हो जाएगा. तो जीरो होने के बाद इसका सर आवाज कट रहा है. सर एक मिनट रुको, दे रहा है सर आपका आवाज. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. ओके, सो नाउ मैं मूव कर रहा हूं अब I2 के इक्वेशन. बाकी और एक इक्वेशन रहा I2, एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज I2. I2 equal to H21 I1 plus H22 I2. नाउ इस इक्वेशन को गौर से देखें. ये करंट कंपोनेंट है, तो ये जो पैरामीटर होगा दैट मस्ट बी करंट कंपोनेंट, एंड सॉरी दिस इज V2 नॉट I2, दैट इज V2. ओके, एंड यहाँ पे जो पैरामीटर्स है दिस पैरामीटर्स आल्सो भी करंट कंपोनेंट. सो ये भी एम्पियर होगा और ये भी एम्पियर होगा, so that summation of both amperes will give you the current quantity and which is also ampere. ठीक है. सो नाउ मैं अब यहाँ पे डिफाइन करूंगा. तो यहाँ पे डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे इस पोर्शन को जीरो करना पड़ेगा. ठीक है. सो I2 can be termed as H21 by I1 when V2 equal to 0. तो अगर ये V2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो ये देखो H21 क्या होगा? H21 इक्वल टू I2 by I1, that is the input, that is the ratio of output current by input current. So it can be termed as, and ये आउटपुट बाय इनपुट ही है, तो वहां पे इनपुट बाय आउटपुट था तो रिवर्स यूज किया, तो ये आउटपुट बाय इनपुट है, तो फॉरवर्ड current transfer ratio with V2 0 है. V2 कब 0 होगा? शॉर्ट सर्किट में. आउटपुट शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, एंड इट इज यूनिटलेस, यूनिटलेस. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट इज H22 निकालना है. सो H22 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पोर्शन को जीरो करना पड़ेगा. ये पोर्शन कब जीरो होगा? I1 जब जीरो होगा. I1 कब जीरो होगा? जब इनपुट सर्किट ओपन होगा. ओके, सो I2 इक्वल टू H22 V2 when I1 इक्वल टू 0.
Okay. That is I1 equal to 0. So H22 becomes I2 by V2 when I1 equal to 0. So H22 देखो H22 क्या हो रहा है, सॉरी, करंट बाय वोल्टेज, करंट बाय वोल्टेज। तो ये क्या है, किसका इक्वेशन है? दैट इज एडमिटेंस, एडमिटेंस दैट इज इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस। एडमिटेंस का इनवर्स है इम्पीडेंस। दैट इज नॉट, इंस्टेड ऑफ आर आई विल राइट 1 बाय इम्पीडेंस। जेड। हाँ, गुड, 1 बाय इम्पीडेंस। ठीक है, सो एडमिटेंस है, तो ये दिस इज एडमिटेंस। नाउ एडमिटेंस कहां पे आ रहा है? H2 पे। सो आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस विथ, यहाँ पे V2 कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? I1 को 0 लेना पड़ा था। I1 कब 0 होगा? ओपन रहेगा। विथ इनपुट ओपन सर्किट एंड इट्स यूनिट विल बी mho और सीमेंस। ये बाय नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ ना, mho बाय सीमेंस लिख दोगे तुम लोग, mho और सीमेंस। ठीक है, सो ये हो गया 4 पैरामीटर्स, अननोन पैरामीटर्स। तो इसको अगर हम टेबल में पुट करेंगे तो कैसा लगेगा? दैट इज H11, H12, ये एक टेबल है, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो। ठीक है, ये इस पोर्शन का है H11, H12, H21, H22। सो नाउ ये H11 और H22 ये दोनों सेम टाइप का होगा, ठीक है, कॉर्नर वाइज। और सिमिलरली H21 एंड H12 सेम होगा। सो यहाँ पे H21 इज यूनिटलेस, यूनिटलेस, तो ये हो जाएगा यूनिटलेस, यूनिटलेस। ठीक है, ये H11 ओहम है, तो H12 इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मो और सीमेंस। ठीक है, ये चार्ट याद रखना। ठीक है, कि H11 का ऑपोजिट होगा H22, डायगोनली मो ओम है तो मो हो जाएगा। यहाँ पे H12 सी यूनिटलेस है तो H21 भी यूनिटलेस होगा। ठीक है, सो टुडे अप टू दिस, यहाँ तक सबको समझ में आया? टू पोर्ट नेटवर्क का तुम लोग का डिटेल पार्ट नहीं है, फिर भी मेरा स्टार्टिंग पार्ट तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, अदरवाइज पूरा टू पोर्ट नेटवर्क बाउंसर हो जाएगा। ठीक है, सो टुडे अप टू दिस